I welcome all of you with an Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We all are here. We all are gathered here for the beautiful orientation of a prestigious university, Virtual University of Pakistan. First of all, let me give you the brief introduction of this wonderful institution named Virtual University of Pakistan, the largest distant learning university in Pakistan. The Virtual University of Pakistan was established in 2002 through an ordinance number L2 of 2002-2002. The establishment corporation of this university is a historical, even outstanding, monumental milestone for Pakistan in the field of higher education. The VU was established to extend lifelong learning opportunities of affordable, quality higher education to people of all areas of Pakistan using information communication technologies. It combines broadcast television, internet, and conventional strategies of teaching and learning to deliver quality education. During a short period of its existence, the university has earned a respectable status in the academic community and is making significant contribution in the socio-economic development of the country. My dear students, let me tell you, if I talk about, more than a decade ago, it was a dream to get a charter degree. It was a dream to get a charter degree from a recognized institution. There were government institutions, but the merit was so high. And the majority of the students couldn't get admission in the government recognized university. And even there were private institutions, private universities as well. But they used to offer degree at a very high cost. So imagine what most of the students used to do. They were compelled to get admission in the non-recognized institutions, where even they had to pay lots of money to earn the degrees, but their degrees were nothing more than a piece of paper, because their institutions were not recognized by HEC. And then VU, by breaking all the shackles, all the hurdles, VU has provided you the world-class, affordable, HEC recognized degree, or the world-class, affordable education to all the students across all areas of Pakistan. So it won't be wrong to say that VU has actually revolutionized the whole educational environment of Pakistan. We have the students studying here within the country as well as overseas. So ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने पाकिस्तान में रह के तो पढ़ सकते हैं. Even you go abroad, or maybe you are transferred and you have shifted over there due to any of the reason,
phenomenon. You have shifted, for example, your parents are residing over there and you were temporary here. Number two, you have to go there to find a good job and you are going there, but you have taken admission in VU in Pakistan. There is no harm in it. You're transferring your degree overseas. आप उधर जा रहे हैं, अपना स्टेटस ओवरसीज करें, अपनी यही एजुकेशन को उधर कंटिन्यू करें। जिस तरह आप इधर कंटिन्यू किए हुए, अपनी डिग्री को उधर कंटिन्यू किए हुए डिग्री अर्न कर सकते हैं। यानी कितनी सहूलत है। और ख़ास तौर पर मैं तो जो हमारी फीमेल्स बेटियां हैं, आप देखें ना, आजकल बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत दूर दराज चली गई हैं, लाहौर से बाहर चली गई। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है कि आपके डोर स्टेप के ऊपर यूनिवर्सिटी वीयू ने कैंपसेस ओपन किए हुए अपने, और हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स मेल्स फीमेल्स मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हकीकी तौर पर वीयू ने जो तालीमी मैदान है उसमें इनकलाब बर्पा कर दिया, तालीमी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, राइट। And we have, so many courses available, so many programs offered to our students. Next. We are offering PhD programs. We have MS, BS and BEd honors, associate degree 2-year programs, diploma programs, certificate courses comprise of 1 semester, and specialization certificates. We are offering PhD in computer sciences, MS in MSCS, and then BS programs under different disciplines, different faculties like Faculty of Education, Faculty of Computer Science and Information Technology, Faculty of Management, Faculty of Arts, and BS in Science. We are offering under Faculty of Education BEd Honors Elementary, BEd Secondary 1.5 years, BEd Elementary 2.5 years, and the details are available on the website. You can easily go and find out the details. Faculty of Computer Science and Information Technology, BSCS, BSIT, and BS Software Engineering. These all are 4 years programs. But now, before I move forward, I also want to clarify another thing regarding admission in BSCS, BSIT, and BS Software Engineering. From now onward, this semester, only those students could get admission in BSCS, BSIT, and Software Engineering who have studied in mathematics in intermediate of 200 marks. तो जिन्होंने 200 नंबर का मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, प्लस दे हैव अटेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, टोटल जिनके 50% 50% मार्क्स हैं वो, और प्लस उन्होंने ICS किया हुआ है या FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है, वो एडमिशन BSCS में, BSIT में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। अच्छा हाँ, एक BSc प्री मेडिकल के जो प्री मेडिकल का केस है FSC का, तो FSC स्टूडेंट जो प्री मेडिकल वाले हैं वो भी BSIT, BSCS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस इफ दे हैव अटेन्ड 50% और मोर देन 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। लेकिन यह है कि उनको फिर डेफिशिएंसी कोर्स के तौर पर 2 कोर्सेज एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं और कोई फ़र्क। ठीक है जी। तो इस सेमेस्टर से HEC ने
जो क्राइटेरिया हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है वो यही है। इसलिए बहुत से पहले स्टूडेंट जो FA करके आते थे या DA का अपना सॉरी C.Com D.Com करके आते थे तो वो भी कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जिसने 200 नंबर्स का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है सिर्फ वही इन हमारे जो कंप्यूटर साइंसेस की डिसिप्लिन है IT CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। विल कंटिन्यू इट आफ्टर द प्रेयर अजान। महबूब यार ये उठा लो, ले जाओ, ये आप जरा भाई के साथ उठा के उसको बाहर ले। रोस्टर नाउ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट excuse me. In Faculty of Management, we are offering BS Business Administration, BS Commerce, BS Public Administration, and BBIT, which is Bachelor of Business and Information Technology. In Faculty of Arts, we are offering our students mass communication, psychology, sociology, and economics. These all are 4 years program. Here comes associate degree, which is actually 2-year program. Associate degree program 2 year, जो आप पहले कहते थे कि ये 2 साल का ग्रेजुएशन है, ये 2 साल का BA है या 2 साल की BSc करवा रहे हैं, अब वो ग्रेजुएशन नहीं है, वो डिग्री नहीं है, वो एसोसिएट डिग्री है। अब प्रॉपर डिग्री जो है वो 4 साल, तो 2 साल की जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में वी आर ऑफरिंग यू मैथ्स कॉम, साइकोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, database management system, web design and development, computer science, education, early childhood care and education, accounting and finance, Islamic banking, human resource management, operations management, sales and marketing, supply chain management, business administration, and commerce. One-year diplomas, applied psychology, television production, English language teaching, linguistics, computer science, information technology, education, accounting and finance, banking and finance, business administration, entrepreneurship and SME management, finance, human resource management, marketing management, public administration, molecular biology, and bioinformatics. Certificate courses: computer science, general science, humanities, management, mathematics, and there is a large variety available under these certificate courses. You can find out the details in our website www.vu.edu.pk. Specialization certificate in banking, finance, HRM, information system, marketing, and management. Facilities at your SEEK campus. The SEEK campus, let me tell you about this. I would say one of the pioneer campus of Virtual University, established in 2008-9. And
with the grace of Almighty Allah, alhamdulillah, we have been producing one of the best results in the history of VU. Our students, they have got the merit-based scholarship, they have got the laptops under, government scheme, and they have been outstanding academically, and they all are not only performing academically good, they are equally good at sports as well. So our university equally provides you sports facilities as well, opportunities as well, with the academic facilities. So inshallah you will have all the time and platform available to show your potential physically, inshallah, as well. Facilities at the C campus, we are, my staff is available 9 to 9 to help you out, particularly in the beginning. Most of the students, those who face problem, how to move with the proceedings of the VU, सर पढ़ना कैसे, क्विज कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करनी है, कब आएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है, असाइनमेंट कब आती है, कैसे पता चलेगा हमें, किधर आएगी, क्विज किधर आएगा, इसको अपलोड कैसे करते हैं, एग्ज़ाम कब होना है, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, डेट शीट कब आती है, डेट शीट कैसे बनाते हैं, अपने कैंपस में अगर पेपर देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं, और अपने कैंपस के अलावा कहीं और अगर मिसाल के तौर पर आप उस ख़ास तौर उस टेन्योर के अंदर आप लाहौर से बाहर जा रहे हैं, वो एग्ज़ामिनेशन के डेज़ में ही, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि जो हमारे जॉबर्स हैं, जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम डेज़ के अंदर ही उनको कोई ऐसा टास्क आ गया है आउट ऑफ द सिटी परफॉर्म करना है उन्हें, तो वो क्या करेंगे, अब वो पेपर तो देने हैं। अब आपके जहन में होगा सर अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पेपर भी रह जाएंगे, नहीं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी जा रहे हैं, आप अटक जा रहे हैं, आप सरगोदा जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, इवन के छोटे शहरों में भी हमारे कैंपसेस अवेलेबल है। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर जिधर जा रहे हैं वो सिलेक्ट करें, या अगर सिलेक्ट कर लिए तो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज कि जिसमें आपको वीयू के साथ एडजस्ट करने में और वीयू के साथ आपने मूव ऑन कैसे करना है, अपनी डिग्री की 2, 3, 4 साल प्रोसीडिंग्स कैसे चलानी, ये ओरिएंटेशन का मकसद भी यही है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके रिस्पॉन्ड किया जा सके, आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा IT स्टाफ इंक्लूडिंग मी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल लाइक 24 आवर, वैसे तो 9 to 9 है, लेकिन मैं उसको कहता 24 आवर इमरजेंसी डॉक्टर्स। सो यू मोर देन वेलकम टू कम टू डिस्कस योर एकेडमिक इश्यूज, योर प्रॉब्लम्स, you are more than welcome, right? Physical lectures, one of the very important facility of your this C campus, क्योंकि डिस्टेंट लर्निंग है। मैं आपको बताता हूँ, तो डिस्टेंट लर्निंग में ख़ास तौर पर हम 10-12 साल या 13-14 साल फिज़िकली स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये एक्सपोजर एक नया एक्सपोजर होता है कि सर कंप्यूटर के सामने बैठ के लेक्चर लेना और हेडफोन के साथ या कोई और डिवाइस के साथ लेक्चर सुनना, जैसे आपके एयरफोन्स हैं, तो वो बहुत से स्टूडेंट्स आदी नहीं होते। और थ्योरेटिकल तो थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो आपको शायद ज़्यादा मुश्किल पेश आए कि आप देख के उसको ना समझ जाए, जैसे मैथ्स का है, स्टैट्स का है, अकाउंट्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत पेश आती है कि आप उसको वीडियो लेक्चर से समझ सकें।
तो हमने इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपने स्टूडेंट्स को उनके लिए फिजिकल लेक्चर्स का अरेंज किया हुआ कि आपको एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स, टीचर्स आपके कैंपस में पढ़ाने के लिए आएंगे। एंड दैट फैसिलिटी इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। वो इसीलिए आपके अपने खास अपने कैंपस स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए रखी गई है फैसिलिटी, ताकि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट एकेडमिकली ले सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आपको एट द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन इंशाल्लाह हम लेक्चर स्केड्यूल भी देते हैं और आप देखेंगे कि उसमें आपके लेक्चर्स किस किस दिन कौन कौन सा लेक्चर आ रहा होगा। तो मैं समझता हूँ, और वो मैंने ज़्यादातर लेक्चर्स अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कि उनके लिए डेली आना फिज़िकल लेक्चर्स के लिए पॉसिबल ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनकी डिफरेंट कमिटमेंट्स हैं, बहुत से लोग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब्स करते हैं। तो हमने उसके लिए दिन मैंने ख़ास तौर पर सैटरडे का रखा हो कि सैटरडे कई लोगों का ऑफ होता है, या कम से कम एक दिन तो वो मैनेज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, फर्दर टू ईज देम आउट, टू फैसिलिटेट देम फर्दर, हमने क्या किया हुआ है, हमने लेक्चर्स ना सिर्फ सुबह के टाइम रखे हुए हैं, हमने शाम के टाइम भी उन लेक्चर्स का एहतमाम किया कि मॉर्निंग अगर 9 से 1 बजे है कि रेगुलर स्टूडेंट्स अगर मॉर्निंग में आ सकते हैं, या जिनकी जॉब लेट स्टार्ट हो रही है वो मॉर्निंग में आके अपने लेक्चर अटेंड करके जा सकते हैं। और अगर वो मॉर्निंग में नहीं और वो कहते हैं कि हमारी 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कमिटमेंट है, तो हमने वो इवनिंग लेक्चर 6 से 8:30, 9 बजे तक उनको अरेंज किया। सो कितनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, मैं समझता हूँ हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए। हफ्ते में एक लेक्चर होता है या मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर होंगे। वो टीचर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिमांड वो आप देखेंगे कि मैनेज करते हैं आपके साथ, लेकिन ज़रूर उसको हासिल कीजिए। आपके कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, आपके मैथ्स के ख़ास तौर पर सब्जेक्ट्स हैं, आपके अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, आपके फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इस मरतबा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी जो डिग्री है BT 101, BT 102, इवन के साइकोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, हमने ये लेक्चर्स भी इस सेमेस्टर से अल्हम्दुलिल्लाह ऐड किए हैं ताकि अपने स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो बाकी तो खैर जनरेटर तो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल जो हालात हैं, क्योंकि लाइट आ भी रही हो तो हमें यही लगता है कि कभी भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आपके कैंपस के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री वीडियो लेक्चर्स ऑन USB एंड हार्ड ड्राइव। अच्छा, ये एक बात समझने वाली, आपके जहन में हो कि सर जो तो स्टूडेंट्स डेली आएँ मोर देन वेलकम, क्योंकि हम तो चाहते हैं और हमें अच्छा लगता है और स्टूडेंट उसकी जो ग्रोथ है एकेडमिकली वो उस स्टूडेंट से यकीनी तौर पर बेहतर होगी जो कैंपस रूटीन से या तवातर से आता है। ज़रा उसका इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो आके एक रूटीन उसकी बनती है, तो वो अपने इन टच रहता है अपनी स्टडी एक्टिविटीज़ के साथ, एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ। तो लाजमी तौर पर फिर उसके लिए परफॉर्म करने का मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो आप डेली आए, माशाल्लाह इतना बड़ा कैंपस अवेलेबल है आपके लिए, 2 लैब्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एयर कंडीशन लैब्स हैं। आप आएँ और अपने इधर आके लेक्चर सुनें, फ़िज़िकल लेक्चर लें, ऑनलाइन लेक्चर्स लें। सिर्फ दोपहर का एक गैप होता है हमारा नमाज और खाने का, 2 से 3 बजे तक। उसके बाद जो है वो रात 8 बजे तक 9 बजे तक कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह खुला होता है। तो अगर वो स्टूडेंट्स जो कैंपस डेली नहीं आ सकते या जिनकी जॉब कमिटमेंट इतनी उनके लिए सख्त है, अब वो कि सर हम क्या करें, कैंपस नहीं आ सकते, लेक्चर कैसे लें, तो उनके लिए ये है कि वो अपनी USB हार्ड कोई भी फिजिकल कोई डाटा सेविंग डिवाइस लें, उसमें लेक्चर्स कॉपी करवा के ले जाएं। सेमेस्टर के करने हैं वो तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेस
अवेलेबल ऑन योर फिजिकल डिवाइस, इन योर फिजिकल डिवाइस, कि आप अपनी हार्ड ड्राइव ले आएँ, यूएसबी लें, उसमें लेक्चर्स कॉपी करवा के सेमेस्टर के ले जाएं, महीने के ले जाएं, जैसे आप बेहतर समझते हैं कि आप अब आए हैं तो महीने के बाद ही आएंगे फॉर एग्जांपल, या 15 दिन के ले जाएं, इट्स ऑल अप टू यू, सेमेस्टर के ले जाएं। तो आपके कैंपस में हमारे पास क्योंकि सर्वर्स में हमारे सेव है लेक्चर्स, तो आप लेक्चर्स हमारे पास, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट हैज़ नो कॉस्ट एट ऑल। कैंपस की तमाम फैसिलिटीज़ फ्री हैं, तमाम फैसिलिटीज, यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी अगेंस्ट एनी फैसिलिटी ऑफ द कैंपस। अवेलेबिलिटी ऑफ व्यू हैंडआउट्स, आपके पास चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट हेड ऑफिस ऑर्डर करें और अपने हैंडआउट्स अवेलेबल आप करवाना चाहते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। सिर्फ वो ये है कि 1-2 दिन लग जाते हैं, बाकी आप घर पे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं जल्दी लेना हैंड आउट, तो वो आप अपने कैंपस से भी ले सकते हैं। तो दोनों आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप यूनिवर्सिटी से मंगवाना चाहें वो भी है, बल्कि वो थोड़ा कदरे चीप है, कम रेट पर है, वो आप वहीं से भी मंगवा सकते हैं। कैंपस से जो लेना चाहते हैं वो मोर देन वेलकम, कैंपस भी आपको हैंड आउट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, which I believe it's one of my very important obligation. I counsel my own students. I often say, never decide anything by your own. खुद कोई चीज़ डिसाइड मत कीजिए। बहुत सी चीज़ें जो स्टूडेंट्स अनजाने में डिसाइड कर बैठता है और अपना सेमेस्टर ज़ाया कर बैठता है, उसको पता ही नहीं होता, मशवरा करता नहीं है। वो इधर उधर से किसी स्टूडेंट से वो कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान वाले साहब है। वो स्टूडेंट तो नहीं बेचारा इतना जान सकता ना जो कि हम प्रोफेशनल जानते हैं, जो हम आपको गाइड काउंसल कर सकते हैं। कोई इवन के सीनियर स्टूडेंट भी आपको उस तरह नहीं बता सकते। तो कोई डिस्कस करने की बात, डिस्कस एनी एकेडमिक मैटर, यू कैन डिस्कस दैट विद मी, कम टू माई ऑफिस, माई डोर्स आर ओपन फॉर यू, आई लव टू अकोमोडेट माई स्टूडेंट, इट इज माई पैशन, I try my level best, you know, that I leave no stone unturned, जिसको कहते हैं कि कोई कसर नहीं उठा रखता। तो इसलिए आप कोई भी आपका एकेडमिक मैटर है, कोई इशू है, डिस्कस विद मी, कम टू माई ऑफिस एंड गेट दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अपने से कोई बात, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई मसला डिस्कस करना है, नहीं पता चल रहा, को आईटी से रिलेटेड इशू है, स्टाफ अवेलेबल, फिर भी नहीं तसल्ली हुई इनसे भी, मेरे पास ऑफिस आए। अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी नहीं, मेरे पास ऑफिस आए। ठीक है जी। अच्छा जी, दिस कैंपस इज़ ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज्ड एज एन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ वीयू। तो हम जो ये वीयू का एग्ज़ाम सेंटर भी है, पेपर्स भी इधर मिड और फाइनल के होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो दूर दराज जाने की बजाय उनको अपने कैंपस में ही सहूलत मिलती है कि वो अपने एग्ज़ाम को, ख़ास तौर पर मैं बेटियों की स्टूडेंट्स, फीमेल्स की बात करूं, तो उनके लिए बहुत सहूलत है कि उनको दूर नहीं जाना पड़ता, कहीं और किसी सेंटर में पेपर देने के लिए ज़्यादा फासला नहीं तय करना पड़ता। उनको पता है अपने कैंपस में आना है और वो नियरेस्ट कैंपस है आपके, तो आके अपने एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया ज़रा देख लें। आपका जो एग्ज़ाम है पूरे सेमेस्टर का, ये देख लें, उसकी वेटेज 100 नंबर इस तरह बनता है। मिड की है 35%, फाइनल 50% और क्विज़ेस और असाइनमेंट्स है 15%। %35 दोबारा मैं बता रहा हूं, 35% आपका मिड टर्म है, 50% का फाइनल टर्म है। तो ये दोनों मिलके 85%, 85% बने।
और 15 नंबर के आपके जो पूरे सेमेस्टर में आप क्विज़ेस और असाइनमेंट्स गाए बगाए आ रहे होते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की, पूरे सेमेस्टर की तमाम सब्जेक्ट्स की जो क्विज़ेस असाइनमेंट्स हैं या जीडीबी है, उसकी जो वेटेज है तमाम की वो 15%। तो स्टूडेंट्स अमूमन परेशान होते हैं, ओहो सर मिड खुदा न ख्वास्ता किसी का अच्छा नहीं हुआ, ओ सर मिड नहीं अच्छा हुआ तो मेरा सेमेस्टर रह गया। नहीं, क्यों? आपके पास 50 नंबर फाइनल के हैं, 15 नंबर क्विज़ असाइनमेंट के हैं, तो यू हैव स्टिल द चांस टू परफॉर्म एंड क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ये सोचना कि मिड नहीं सही हुआ तो फाइनल भी अब देने का फायदा नहीं है तो छोड़ दें, इधर ही सेमेस्टर ड्रॉप कर दें, दोबारा कर, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। इसलिए मैं कहता हूं कि नेवर डिसाइड एनीथिंग बाय योर ओन। खुद ने डिसाइड करनी कोई चीज, मुझसे हम किस लिए हैं? हर मसाइल, तमाम मसाइल का हाल है, लेकिन वो डिस्कस करने से, खुद से करके, और वो तो फिर आप अपने लिए प्रॉब्लम पैदा करें। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूं अपने हर ओरिएंटेशन में अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स हमारे से डिस्कस करें। जितने मसाइल डिस्कस करेंगे उनका हल निकलेगा, आपके जो मार्क्स स्कोर करने के जो चांसेस हैं, ग्रेड्स अच्छे लेने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो अब जो एग्जामिनेशन, मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया बता देता हूं कि उसकी वेटेज क्या बनती है, एग्जाम में क्या क्या आता है, यानी कितने नंबर के कौन सा क्वेश्चन होता है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। अब आपके जहन में हो एक ये भी क्वेश्चन आता है ना कि सर वी डोंट हैव द टाइपिंग स्पीड, ये जनरल आता है ना, सर हमारे पास तो टाइपिंग स्पीड ही नहीं है, वो कैसे करेंगे पेपर। तो कोई खास टाइपिंग स्पीड की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अक्सर मोबाइल टाइप करना आता है ना, तो जितनी तेजी से आप मोबाइल टाइप करते हैं ना, उससे 50% चाहिए पेपर करने की। तो आपका इस तरह है कि जो मेजर पोर्शन होता है मार्क्स का वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 60 नंबर के एमसीक्यूज को 20-25 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और को 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जैक्टली ये नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह वेटेज होती है कि 50 to 60% जो है वो एमसीक्यूज का ज़्यादा पोर्शन होता है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस का और फिर लॉन्ग। तो कोई इतनी लंबी चौड़ी टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत नहीं। आप, मैं ये बता दूं, इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1 घंटे का मिड टर्म का पेपर और बहुत से स्टूडेंट्स को 10-15 मिनट पहले पेपर करके उठ के जा रहे हैं। तो आप ये देख लें कि कितनी की टाइपिंग स्पीड, उनको कोई 50 वर्ड्स पर मिनट तो नहीं चाहिए पर, है। सो फील फ्री। वो जैसे कहते हैं, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, गुड स्टार्ट इज हाफ डन। जिस चीज का स्टार्ट अच्छा ले वो जॉब ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो जाती है। स्टार्ट अच्छा लेना है, इंशाल्लाह एक्सेल करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, कोई आज ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहें, कोई डिग्री से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहें, वो पूछ सकते हैं। फिजिकल लेक्चर्स का स्केड्यूल ज़रा दें ज़रा इनको। ये लेक्चर स्केड्यूल है जी, ये अपने पास रखिए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे है। नहीं, फिर भी आप मेरा ख्याल वो स्टूडेंट्स की तसल्ली नहीं होती, वो आते हैं, चाहते हैं कि अपने आगे कैंपस से लेके जाएं और फिर उसको। जी वही हम बिल्कुल अवेलेबल। अगर वो नहीं, मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट होगा या
देखें वो एक एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट्स है एक BScs वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ज़रा हाथ खड़ा करेंगे। BScs, BS IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, वो तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब इन लोगों का सब्जेक्ट है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, इनका सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट्स है मिसाल के तौर पर। एक सब्जेक्ट है इनका CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, एक इनका सब्जेक्ट है MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है जी। एक इनका मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब 6 बाकी, एक पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात है और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट, तो ये 6 हैं। अब 6 में से अगर 3 सब्जेक्ट जैसे कैलकुलस है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, अब ये तीनों टेक्निकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये आप अपने तौर पर नहीं समझ पाएंगे, ख़ास तौर पर जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ही नहीं है तो उनके लिए क्या हो। यह कैलकुलस भी आप देखिएगा तो वो इतनी कोई आसान नहीं है कि आप अपने तौर पर, ठीक है जिनको आती है, मैथ्स बहुत अच्छा है, FSC में पढ़ा हुआ है, उनको इतना शायद ना गाइडलाइन चाहिए, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को चाहिए होती। तो हमारे टीचर हैं ज़बरदस्त, वो आते हैं पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक फैसिलिटी है और आप कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, सुबह आएँ या शाम आएँ, तो देन वाई नॉट टू अवेल दैट फैसिलिटी। जब एक चीज़ मिल रही है और उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करने का, तो ज़रूर मैं फ़िज़िकल लेक्चर को तो ख़ास ज़ोर देता हूँ कि ये ज़रूर आप अटेंड करें। ये सब्जेक्ट कोड है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आप जब अपनी बुक्स लेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश है ENG 101, कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री MTH 101, डिस्क्रीट मैथ MTH 202, ISL 201 इस्लामिया मिसाल, बायोडाइवर्सिटी का BT 101। तो अब बायोटेक्नोलॉजी के कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3, आपके इसमें कम से कम 3 लेक्चर्स लगे हुए हैं, कम से कम 3 लेक्चर्स लगे हैं, ज़रूर पढ़िएगा। और आप एक दिन हफ्ते में मैनेज नहीं कर सकते, मॉर्निंग या इवनिंग कर सकते हैं ना। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं दोज हु कैन मैनेज टू अटेंड द फिजिकल लेक्चर्स आइदर दे आर मॉर्निंग और इन इवनिंग? रेज योर हैंड्स। सही सही, 1 2 3। और जो नहीं कर सकते फिजिकल लेक्चर पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा ख्याल है सैटरडे का दिन तो मैनेज कर ही सकते हैं, क्या नहीं? मुश्किल है, मुश्किल है। चलें, अगर आप फिर भी उसके अलावा कैंपस अवेलेबल है, खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गाइडलाइन लेनी, कम एनी टाइम। एनी क्वेश्चन जी? जी प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी ये बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है, मैं इसी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्विज कब आते हैं? अच्छा, क्विज होता क्या? पहले तो ये ना, क्विज होता क्या? क्विज एक्चुअली फॉर एग्जांपल VU कहता है, एक सब्जेक्ट है कैलकुलस का, मैथ्स का। VU के आप देखेंगे तो आपके ना अपने VU LMS के ऊपर एक स्केड्यूल आ रहा होता है कि आज इसका ये लेक्चर है, इस सब्जेक्ट का इसका ये लेक्चर है, यानी वीकली स्केड्यूल ऑलमोस्ट आप समझे दिया। आज MTH 101 का लेक्चर 1 होगा या 2 होगा, कल MTH 101 का लेक्चर 3 या 4 है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो करते करते वो एक हफ्ते में उन्होंने 3 से लेक्चर एक सब्जेक्ट के पढ़ाना, एक सब्जेक्ट के हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर पढ़ाना। वो लेक्चर जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर अगले हफ्ते जो पढ़ा होता है 3-4 लेक्चर, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो MCQs की फॉर्म में हो सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है कि अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं क्विज। और इसी तरह इससे रिलेटेड भी चीज़ें असाइनमेंट होती है। आई थिंक नाउ आई इनवाइट Kabir Khan to come here and guide you and inform you and explain you
कि हाउ एक्चुअली VU-LMS वर्क, हाउ एक्चुअली VU-LMS वर्क्स फॉर यू पीपल. Kabir, come and explain them. Thank you. अच्छा, आप में से जिन जिन स्टूडेंट का फीस जमा हो चुकी है उनको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, जिसको हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. उसको लॉगिन कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया कैसे है. जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट टाइम उसको एक्टिव करना पड़ता है. जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आपके होम पे सब्जेक्ट शो नहीं होंगे. तो सबसे पहले एक चीज़ आप क्लियर कीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट LMS ट्राई कीजिएगा कि आप सिस्टम या लैपटॉप पे यूज़ करें. उसकी वजह ये है कि जो हम आपसे एग्ज़ाम लेंगे या जो हम आपको होमवर्क देंगे असाइनमेंट को GDP की शक्ल में, वो हम आपसे सिस्टम पे लेंगे, मोबाइल पे नहीं हो सकता. तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कीबोर्ड होगा, आपको टाइप करने में मसला होगा, समझ नहीं आएगा. तो लिहाजा सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी. गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे LMS लॉगिन लिख लें, VU-LMS लिख लें. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ID और पासवर्ड मांगा जाएगा. हर स्टूडेंट के पास ID पासवर्ड मौजूद है. अगर किसी की फ़ीस जमा हो गई है और अभी तक उसको लॉगिन नहीं मिला तो वो अभी इस क्लास के बाद हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा. हमारे पास आपका ID पासवर्ड आया होगा, वो हम आपको दे देंगे. ठीक है जी. इस तरह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप अपना ID लगाएंगे और नीचे पासवर्ड होगा. अभी एक पासवर्ड आपको मिला है सर्वर जनरेटेड, उसको आप चेंज करेंगे. जब आपका अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड चेंज मांगा जाएगा. ठीक है जी. मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ. लॉगिन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगेगा. अगर आप सबकी जो कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है तो उसका अपडेट यहाँ पे डालें. अगर किसी का नहीं हुआ, इन केस वो नहीं इसमें ऐड करना चाहता, तो होम पे क्लिक करेंगे तो आपके होम पे सब्जेक्ट आ जाएंगे. होम पे क्लिक कर. जब आप लोगों का LMS एक्टिव हो जाएगा तो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट आपके होम पे आ जाएंगे. नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद फर्स्ट टाइम आपसे ईमेल ID मांगा जाएगा. आपकी Gmail ID या जो भी आप Gmail ID यूज़ करते हैं. लाजमी नहीं है कि जब आपने अप्लाई किया था जो ईमेल ID आपने यूज़ की थी कि आप वही लगाएंगे. अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हैं. जब ईमेल ID आप लगा लेंगे उसमें तो आपकी मेल पे एक लिंक चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए. आप अपनी ईमेल लॉगिन करें, लिंक पे क्लिक करें, दोबारा सेम ID पासवर्ड मांगना स्टार्ट कर देगा. दोबारा आप एंटर करेंगे. जब दोबारा एंटर करेंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड चेंज की ऑप्शन मांगेगा. फर्स्ट टाइम जो आपको पासवर्ड मिला आपने वो लगाना है और नीचे दो ऑप्शन आ रही होगी न्यू पासवर्ड की, वहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगाना है. पासवर्ड के कुछ रूल है. फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी का नाम या अपना नाम लिखते हैं तो एक कैपिटल वर्ड लाजमी होना चाहिए पासवर्ड में. ठीक है. 1 से लेकर 9 तक एक वर्ड लाजमी होना चाहिए. और स्पेशल कैरेक्टर जो हैं जैसे $साइन है, एस्टेरिक है, कोई एक ऑप्शन जो है जो वो लाजमी. मिसाल के तौर पर मैं पासवर्ड यूज़ करता हूँ Lahore@123. तो लाहौर में कोई भी एक वर्ड आप कैपिटल कर लें, L कैपिटल कर लें, लास्ट वाला वर्ड कर लें, दरमियान वाला, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है. तो जब वो हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह होम पेज ओपन हो जाएगा. होम पेज ओपन होने के बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो है असाइनमेंट, क्विज़ और GDP. जो टोटल आपके सेमेस्टर का 15% बनता है, 15% आपका बनता है जो सिर्फ इसके मार्क्स होंगे. 35% आपका मिड होगा और 50% आपका
फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मतलब इसका एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, साथ में उसका भी 1 लिखा है। ये डे बाय डे जो है ये अपलोड करते जाएंगे। जब ये अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप किसी वक्त भी ये लेक्चर सुन सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। फिज़िकल क्लासेस जो हैं, जो भी कैंपसेस करवाते हैं लाइक यहाँ पे होते हैं, उसका टाइम टेबल आपको दे दिया गया है। आप लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंपस में आके अपने क्लासेस ले सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये लेना मस्ट है, ये लेंगे देन ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये आप किसी वक्त भी सुन सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के इशू है, आप USB लें, हार्ड ड्राइव लें, आप यहाँ से कॉपी करके ले जाएं जितने लेक्चर आपको चाहिए। आप लैपटॉप लें, आप यहाँ से कॉपी यहाँ पे आगे सुन लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, अपनी प्रोफाइल डाटा चेक करना है आपने। नॉर्मली होता ये है कि फॉर्म फिल करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है। अगर आपने कोई अपना फॉर्म फिल किया है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप अभी चेक कर लीजिएगा। नॉर्मली होता ये है कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो फीमेल की लाइन में मेल बैठा होता है, मेल की लाइन में आपका जेंडर बेसिकली गलत लिखा जाता है। एक टिक ही है ना, गलती से हो जाता है, आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। मोबाइल नंबर आपने अपना चेक करना है। मोबाइल नंबर आप जो है अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें, क्योंकि अनाउंसमेंट डेट शीट आ गई है, असाइनमेंट आ गई, कोई भी न्यू अनाउंसमेंट होती है उसका आपके मोबाइल पे अनाउंसमेंट पहुंच जाता है। तो जब तक मोबाइल नंबर आपका अपना नहीं होगा तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको पता ही नहीं होगा। लिहाजा मोबाइल नंबर अपना यूज़ करें ताकि कोई भी हमें चाहे आपसे रब्ता करना पड़े किसी वजह से, हम आपसे रब्ता कर सकें। तो जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल ऑप्शन ये आपकी पर्सनल डिटेल है, उसको ओपन ना कीजिए। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका जेंडर मेल फीमेल, वो आपने तसल्ली कर लेनी ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको मसला ना हो किसी किस्म का। ठीक है। इन केस कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो यहाँ पे लास्ट में एक ईमेल आईडी दी हुई है, studentprofile@bu.edu.pk। इस पर आप अपना जो भी इशू है वो मेल करेंगे। मेल करने के बाद वो कुछ वेरिफिकेशन मांगेंगे आपसे, आप वेरिफिकेशन के हो सकते हैं वो आपसे ID कार्ड मांग लें, मैट्रिक की सनद मांग लें कि जी आप ही हैं या कोई और तो नहीं कर रहा, तो वो आप लगाएंगे, उसके बाद वो अपडेट कर दिया जाएगा। मेन पे हैं जी, होम पेज पे हैं। यहाँ पे मेन चीज़ें हैं असाइनमेंट, GDB एंड क्विज। आपके जब 5-5 लेक्चर हो जाएंगे तो आपको हम होमवर्क देना स्टार्ट कर देंगे। अब असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट में ये होगा कि आपको कोई सी 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपके 5, 6, 7 जितने भी लेक्चर आपके होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम होगा और वो आपको करने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैथ है, लाइक अकाउंटिंग है, इस तरह के सब्जेक्ट में असाइनमेंट करना लाजमी है। बाज़ औक़ात ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास जिनका पेपर बहुत अच्छा होता है बट वो कहते हैं सर हम फेल हो गए। उसकी वजह ये कि आपने एक्टिविटी नहीं की होती। जब तक आप असाइनमेंट को नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आ किस किस्म के रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, MCQs किस तरह के आ रहे हैं। तो लिहाजा ये एक्टिविटी करना लाजमी है। आपकी फ्री के मार्क्स है 15%, तो ये आप करेंगे तो आपका CGP भी आप जाएगा, इसको आपने मिस नहीं करना। मैं बता रहा था कि 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर CS 101 ये आप सबका सब्जेक्ट है। अब जब इसकी असाइनमेंट आएगी सबकी सेम होगी लेकिन किसी का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन है, उसका आप 2 या 2.5 पेजेस उसका एंट्री करते हैं या वर्ड पे आप उसको बनाते हैं। अब वर्ड टू वर्ड तो किसी का सेम नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने कॉपी किया तो हो जाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं कि एक एक वर्ड आपका कॉपी हो। जिसका मैच होगा दोनों के मार्क्स 0। फिर आप बाद में कहते थे जी मुझे तो पता ही नहीं था या कहाँ ये क्या, नहीं जी। लिहाजा अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। जब तक आप अपना LMS पासवर्ड किसी स्टूडेंट को नहीं देंगे या अननोन पर्सन को नहीं देंगे, आपके असाइनमेंट के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो लिहाजा क्वेश्चन सेम होंगे, आंसर सेम नहीं होना चाहिए। मैथ, अकाउंटिंग, स्टैट जो इस तरह की सब्जेक्ट है उसकी खैर है, उसमें ज़ाहिर सी बात है 2 + 2 4 होते हैं, वो वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। बट जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उसमें आप लोगों ने अपनी एक्सप्लेन, बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। बट अगर उस साइड पे आप जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप वहाँ से आइडिया ले लें, बेशक आप वहाँ से पढ़ें
वहाँ से 2-4 लाइनें उठा लें, बेशक आपको की लाइन अच्छी लगती है वहाँ से कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं। बट अगर आप सारी की सारी असाइनमेंट कॉपी करेंगे तो आपके 0 मार्क्स पक्का है। यूट्यूब पे चैनल मौजूद हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि आंसर आपने, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, आप वहाँ से आइडिया ले लें, बट आपने वहाँ से सारा का सारा कॉपी नहीं करना। क्योंकि एक यूट्यूब चैनल या किसी वीडियो पे फॉर एग्जाम्पल 1000 व्यूज़ आएँ, अगर उसमें से 2 बंदों ने भी कॉपी कर ली, दोनों जाएंगे, एक ने कर ली तो वो बच जाएगा। तो लिहाजा ये एक सर्वर, एक कंप्यूटर आपके जो वर्डिंग है वो चेक करता है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। उसको करना कैसे, असाइनमेंट को करना कैसे है, जब आएगी आप हमारे पास आएँ, हम आपको बताएंगे इसका तरीका क्या है। यहाँ पे आके कर लें, घर में बैठ के कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट होगा। नॉर्मली एक बुक का पूरे सेमेस्टर में 6 महीने में 2 या 3 असाइनमेंट आएंगे पूरे सेमेस्टर में। तो हो सकते हैं एक मिड से पहले आ जाए, एक मिड के बाद आ जाए, 2 आ जाए, 2 तो लाजमी आएंगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद ये है GDB। अच्छा, असाइनमेंट में एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि असाइनमेंट फॉर एग्जांपल आज आज 9 मई है, उसकी लास्ट डेट 15 मई है। मैंने 2 दिन में असाइनमेंट बना ली, मैंने अपलोड कर दी। उसकी 2 दिन बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके दोबारा अपलोड कर लेता हूँ। आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं सिर्फ असाइनमेंट पे। लास्ट टाइम जो आप अपलोड करेंगे वही आपकी असाइनमेंट मानी जाएगी, बार बार अगेन आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बट GDB 1 टाइम अपलोड होगी। असाइनमेंट आप वर्ड की फॉर्मेट में सबमिट करते हैं, MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप 2007 यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। GDB में क्या होगा, टू द पॉइंट बात करनी है, 2 लाइनों का में आंसर लिखना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, और वो 1 टाइम अपलोड होगा। 48 घंटे का टाइम होगा, 2 दिन के अंदर आपने उसका आंसर देना होता है। 2 या 3 लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी डिटेल भी नहीं जाती। और पूरी सेमेस्टर में 1 या 2 GDB आती हैं, ज़्यादा नहीं आती। उसके बाद है क्विज़ में क्या होगा, जब आपके 10-10 लेक्चर हो जाएंगे तो आपको MCQs दिए जाएंगे। अब उस MCQs को हल कैसे करना है कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, और एक क्वेश्चन का 90 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, 90 सेकंड का। जैसे आप क्विज स्टार्ट कर लेंगे वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रुप बना के कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं, आप टीचर को बिठा रहे हैं साथ, आप बुक खोल रहे हैं, हमें इस चीज़ से लिंक नहीं है। 90 सेकंड में आपने उसका आंसर देना है, नहीं देंगे ऑटोमेटिकली वो अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा जब क्विज स्टार्ट करें तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो। जिस क्वेश्चन पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा वो क्वेश्चन आपका वेस्ट जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये पूरी एक्टिविटीज़ आपकी चलती रहेंगी पूरे सेमेस्टर में, और आपको ये करना पड़ेगा। 15% नंबर हैं इनके, 35% आपका, 35% आपका मिड होगा, 50% आपका फ़ाइनल होगा। मिड आपका 1 घंटे का होगा और फाइनल आपका 2 घंटे का होगा। पेपर आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी सिटी में दे सकते हैं, चाहे आपका एडमिशन कहीं पे भी हुआ है। पेपर पैटर्न जो है उसमें 60% MCQs हैं और 40% आपके सवाल जवाब होगा। ये फिक्स पैटर्न है हमारा। अगर 26 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 19 या 20 आपके MCQs होंगे, 4 या 5 आपके MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टाइम आपकी मर्ज़ी का होगा, एग्ज़ाम सेंटर आपकी मर्ज़ी का होगा। आप जिस कैंपस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप यहीं पे एग्ज़ाम दे दें अपनी मर्ज़ी से। तो लिहाजा ये 3 चीज़ें हैं, इस पर आपने ख्याल रखना है। अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि जी आपके असाइनमेंट आने वाला है, क्विज़ आने वाला है। ये जो माई टू डू कैलेंडर है, इसमें पूरे 6 महीने का सिलेबस आपको दे दिया जाएगा कि आपकी कौन सी बुक की असाइनमेंट कब आ रही है, क्विज़ कब आ रहा है, GDB कितनी आ रही है। यहाँ पे सारी जो है आपको इसी वीक के लास्ट तक अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि जी फ़लाँ डेट को आपकी असाइनमेंट आ रही है, फ़लाँ डेट को आपका क्विज़ आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद जी ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक में आपका मिड और फाइनल का रिज़ल्ट आता है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती इसमें। जब आप मिड के एग्ज़ाम देंगे, जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसे आप देख सकते हैं, जिसको आप पासवर्ड देंगे जस्ट वही देख सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड हमारा वर्चुअल का कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं है कि हर सेमेस्टर के बाद हम आपको मार्कशीट देंगे। किसी को चाहिए तो वो एक अलग बात है, बट ऑफिशियली मार्कशीट नहीं दी जाती। डिग्री जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद ही हम देते हैं। अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक में जितनी फ़ीस आपने जमा कर ली है
तो जितनी करनी है, ये यहाँ पे बायोडाटा इसका सारा आ रहा होता है। एडमिशन आप लोगों ने जमा करवा लिया है, सेमेस्टर की फ़ीस आपकी इस वीक के लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाएगी। आपकी मर्ज़ी होगी उसकी आपने इंस्टॉलमेंट करनी है पर मंथ बेस पे या एक साथ पे करनी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। फ़ीस आप बैंक में जमा कर सकते हैं, इजी पैसा के ज़रिए जमा कर सकते हैं, नाज़रा ई सहूलत। डेबिट कार्ड वीज़ा कार्ड से भी हो जाती है बट उसमें कभी कभी इशू आ जाता है, बाद वक़्त अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुँचते। तो लिहाजा कोशिश करें कि ईजी पैसा नाज़रा ई या फिज़िकल किसी भी HBL बैंक में जाके जमा करवा लें, वोचर आपको यहाँ से मिल जाया करेगा। उसके बाद प्रोग्रेस है जी, इसमें जब आप एक्टिविटी करेंगे, असाइनमेंट कुछ करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ शो हो जाएगा कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है जो आप असाइनमेंट पेश करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आपने इस ख्याल रखना है। लेक्चर शेड्यूल है, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आपको एक लेक्चर शेड्यूल दे रहा है कि जी फ़लाँ बुक का फ़लाँ इतने वीक में इतने लेक्चर हमने कवर करने हैं। अगर इसके मुताबिक जाएंगे तो मिड टर्म में हमें जितना डाटा चाहिए, जितने लेक्चर चाहिए, जितना हमने सिलेबस में से पेपर लेना है वो उसके मुताबिक क्लियर हो जाएगा। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका 12 बजे का टाइमिंग है, दोपहर 12 बजे का, लाजमी नहीं कि आप 12 बजे लें, ये 12 बजे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जब मर्ज़ी आप सुन सकते हैं, आपके अकाउंट में LMS में 6 महीने के लिए सेव रहेगा, आप सुन सकते हैं किसी वक्त भी। इसके अलावा आपकी बुक्स में जो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो जो आपकी बुक में एक VU 001 का सब्जेक्ट होगा, ई लर्निंग जिसको हम कहते हैं, उसका पेपर नहीं होता, उसमें जस्ट 4 से 5 लेक्चर हैं, आपने वो सुनने हैं। आप चाहे नहीं सुनना चाहते ना सुने बट उसको प्ले लाजमी करना है, क्योंकि वो जब तक सारे लेक्चर प्ले नहीं होंगे, आप सुनेंगे नहीं, तब तक वो पास नहीं होगा। अगले सेमेस्टर में आपको दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नहीं सुने, उसका पेपर नहीं है कोई। उसमें बेसिकली बताया गया है कि असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, क्विज स्टार्ट करने का तरीका क्या है, सबमिट करने का तरीका क्या है, वो आपने लाजमी सुनने। उसके बगैर वो फिर अगले सेमेस्टर में दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लिहाजा उस बुक को आपने इग्नोर नहीं करना। लेक्चर शेड्यूल है, जैसे मैंने बता दिया, अपलोड हो जाया करेंगे, आपने अपनी मर्ज़ी करनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में 3 लेक्चर है, मिसाल के तौर पर, लाजमी नहीं कि आप 3 ही सुने, आप अपनी मर्ज़ी कर लें। अब अपना एक टाइम टेबल बन लें कि आज के दिन मैंने कंप्यूटर पढ़ना है, कल मैंने मैथ पढ़ना है, परसों मैंने इंग्लिश पढ़नी है। एक टाइम टेबल अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। उसमें आसानी ये होगी कि एक ही दिन में आप 2-3 लेक्चर सुन लिया करेंगे। अब लेक्चर सुनने का तरीका क्या है, बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, LMS लॉगिन कर लिए, लेक्चर प्ले कर लिए, हैंड फ्री पहन के सुन लें, ऐसे नहीं होगा। आप या तो हार्ड कॉपी में अपने बुक्स ले लें या आप PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। बुक लेक्चर वही चीज़ आपको पढ़ा रहे होंगे, अगर कोई मसला आता है, कुछ समझ नहीं आता है, पैराग्राफ नोट कर लें, आगे हमारे साथ डिस्कस कर लें, आपकी क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस कर लें अपने टीचर के साथ। ये नहीं करना कि जी लेक्चर सुन लिया, बुक आपकी साइड में पड़ी हुई है, ऐसे फ़ायदे नहीं, वो बोलता जाएगा, आप सुनते जाएंगे, फ़ायदे नहीं है। तो लिहाजा बुक जब आप लेक्चर सुनेंगे तो बुक वही लेसन आपने लाजमी ओपन कर लेना है। बुक्स आपको चाहिए, आप ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा सकते हैं TCS के थ्रू, उसमें टाइम अप डाउन हो जाता है। आप कैंपस के थ्रू मंगवा सकते हैं, पेमेंट जमा करवाएं, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आपको यहीं से बुक्स मिल जाएंगी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है जी। तो लेक्चर शेड्यूल है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं और वर्चुअल के मुताबिक भी आप चल सकते हैं। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल वर्चुअल के साथ आपने हेड ऑफिस कोई भी मेल करनी किसी भी किस्म की, आप इस मेल से करेंगे तो वो आपको रिप्लाई देंगे, वरना आपको नहीं देंगे रिप्लाई। नोट्स हैं, आप असाइनमेंट क्विज यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, इसका बस इतना ही काम है नोट्स का, और कोई काम नहीं। कोई भी आपने पैराग्राफ सेव करना है, जैसे हम USB में कोई फाइल रखते हैं, यहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट क्विज की फाइल रख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम है जी, आपने पूरे 2 साल या 4 साल में जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उस सब का डाटा यहाँ मौजूद है। कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, कुछ जो है रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल BScs में फर्स्ट सेमेस्टर में फिज़िक्स 101 और 301 है, इसमें से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ना होता है। आप अभी अपना LMS लॉगिन करेंगे, उसमें आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऑप्शन होती है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आपने लाजमी पढ़ना होता है। माई स्टडी कोर्सेज है, इसमें बताया गया है कि जी वर्चुअल के जो प्रोफेसर हैं
वो कितने क्वालिफाइड हैं, कौन है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, उनका सारा बायोडाटा यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान से बाहर के प्रोफेसर इन्होंने हायर किए हुए हैं, पाकिस्तान के हैं, उनकी स्टडी कितनी है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सर्विस है। स्टूडेंट सर्विस में जी इस वक्त कोई काम नहीं है, मतलब आपने ट्रांसक्रिप्ट मंगवानी है, डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ये सारा कुछ आप एक बार देख लीजिएगा। कोई मसला हो, कुछ पूछना हो किसी के रिलेटेड, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। कोर्स सिलेक्शन है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट दिए हैं वो आपने पढ़ने ही पढ़ने। इलेक्टिव में हो सकता है आपके पास ऑप्शन आ रही हो सिलेक्शन की, वो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके नीचे से सेव करना है बस, और कुछ नहीं करना, और आपके होम पे जो सब्जेक्ट हैं वो अपडेट हो जाएंगे। दो तरह की स्कॉलरशिप है हमारे पास, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। जिनका ए ग्रेड है लास्ट डिग्री में, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक लिस्ट लगाएगी, अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आपकी फ़ीस में, जो सेमेस्टर की फ़ीस है उसमें कंसेशन कर दी जाएगी। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिनकी लास्ट डिग्री में 60% नंबर हैं, जस्ट वो एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। डिज़र्व स्टूडेंट, जो डिज़र्व हैं सही वही अप्लाई करें, बाकी ना अप्लाई करें तो बेहतर है। उसमें एक बिजली का बिल चाहिए होता है, 2 रेफरेंस चाहिए होता है। किसी ने अप्लाई करना है तो 13 लास्ट डेट है, 13 मई लास्ट डेट है, 13 मई से पहले पहले आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर होता ही है कि एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, हेड ऑफिस डिसाइड करता है कि किन स्टूडेंट को देनी चाहिए, वेरिफिकेशन करने के बाद कितनी देनी चाहिए। एक सेमेस्टर के लिए होती है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने दोबारा अप्लाई करना होता है। LMS के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे भी बता दें, नहीं तो हम फिर वाइंड अप करते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं इसको। मिसाल के तौर पर इस्लामियात, एथिक्स, ये इलेक्टिव है। जो मुस्लिम है इस्लामियात पढ़ेंगे, जो नॉन मुस्लिम है वो एथिक्स पढ़ेंगे। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको सिलेक्ट करवा दूँगा। और कोई क्वेश्चन जी LMS के बारे में? जी बायोटेक्नोलॉजी जो लाहौर के स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रैक्टिकल होंगे आपके, ये शिमला पहाड़ी पे हमारी ब्रांच है, लैब बनी हुई, वहाँ पे होंगे। एक क्लास जो है, एक शेड्यूल जो है वो मिड से पहले है, जुलाई से पहले, और एक जुलाई के बाद की है। सैटरडे संडे जॉब होल्डर के लिए है, और जो बाकी डेज़ हैं वो जो जॉब नहीं करते उनके लिए। एक बुक की 1.5 घंटे की क्लास, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है वहाँ पे, प्रैक्टिकल वगैरह। वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। अनाउंसमेंट आएगी, आप सिलेक्शन करेंगे, हफ्ते इतवार में करना चाहते हैं या नॉर्मली डेज़ में सिलेक्ट करेंगे, डेट्स आगे आ जाएंगी, फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक आपकी प्रैक्टिकल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बुक अगर आपका प्रैक्टिकल है तो 2000 उसके चार्जेस हैं, 2 होंगे तो 4000 है, 3 होंगे तो 6000। और कोई कुछ सवाल जी? जी मिड आपके फ़िज़िकल होंगे, 10 जुलाई को आपका मिड होगा, 10 जुलाई को। हाफ बुक आपने रेडी करनी है मिड तक, ठीक है जी। सेंटर आपकी मर्ज़ी का होगा, जहाँ पे आप देना चाहते हैं, मेरी तरफ से मर्ज़ी चले जाएँ। ठीक है, और कोई सवाल जी? क्या चेंज होता है? प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाती है, बट थोड़ा सा लंबा काम है इसका। आपको स्टाम्प पेपर पे बयान हल्फी देनी पड़ेगी कि जी इस वजह से मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ये आपकी मार्कशीट पे लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अभी तो आप लोगों ने दे दी है, किसी ने इंटर की दी है, किसी ने मैट्रिक की दी है, बाद में जो है ये आपकी डिग्री पे आएगी। और कोई सवाल जी? क्लासेस आज से स्टार्ट हैं, फिज़िकल क्लासेस का टाइम टेबल आपको दे दिया गया है। बाकी जो है आप लोग कल से आ सकते हैं, वेलकम, आप आएँ यहाँ पे। मॉर्निंग में आना चाहते हैं, इवनिंग में आना चाहते हैं, अपना LMS लॉगिन करें, सिस्टम यूज़ करें। कोई कन्फ्यूज़न होती है हमें बताएं, हम आप बैठ के आपको खुद जो है बताएंगे किस तरह यूज़ करना है सर। वो मैं चेक कर लेता हूँ अभी। जिनकी ID का इशू है वो अभी क्लास के बाद मुझसे मिल लें, मैं देख लेता हूँ आपकी ID का इशू। परेशानी की बात नहीं, आज नहीं कल हो जाए, कल आ जाएँ बेशक, कल से आप लोग आ सकते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे कैंपस ओपन हो जाता है। सुबह में आना चाहते हैं, इवनिंग में आना चाहते हैं, अपनी हैंड फ्री साथ लेके आइएगा, हैंड फ्री लाजमी लेके आइएगा आप लोग। हैंड फ्री जरूर सब अपने साथ लेके आइएगा लेक्चर वाले। ठीक है सर।
क्वेश्चन तो कोई नहीं है, क्वेश्चन तो कोई नहीं